Before I start, I want to thank each one of you for being here and always giving so much love to Rubal Nagi Art Foundation and Rubal Nagi for the work we've been doing since a decade in Jammu and Kashmir. तो सबसे पहले मैं अपने दिल से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और हमेशा मैं सिर्फ कश्मीर में जब आती हूँ तब नहीं, मैं जिस भी देश के कोने में जाती हूँ और मीडिया की बात निकलती है तो आप मानिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि जो प्यार जम्मू कश्मीर की मीडिया के भाई बहन जो मेरे हैं वो देते हैं और काम को सपोर्ट करते हैं और एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वो कहीं नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी सिटिंग हियर अमंग ऑल ऑफ यू टुडे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट मेरी 5 दिन की विजिट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में जो मैंने की, अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स को मैं मिली, be it the Sikh community, be it the Pandit community, Brahmins, Ahmadiyya, Muslim Jamaat, Christians, and some of the Shia community also, and कुछ और भी थे, गुज्जर वगैरह। तो उनसे जो मेरी बातें हुई, उनकी कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी, मैं डिमांड्स नहीं कहूंगी, डिमांड बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी जो वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ माइनॉरिटी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से नहीं कर रहे थे, वो अपने देश से कर रहे थे। ये उनका भी कंट्री है, तो उनकी जो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, उसको हमने सुना और उसका एक कलेक्टिव हमने रिपोर्ट बनाई है जो हम आगे दिल्ली में भी सबमिट करेंगे। और हमें बहुत उम्मीद है और मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूं कि वो आगे बहुत अच्छे से उसको रिसीव किया जाएगा और उसको अमल करने के लिए स्टेप्स भी लिए जाएंगे। India epitomizes the concept of unity in diversity, with Jammu and Kashmir standing as the crown jewel, embodying this principle most visibly. Jammu and Kashmir is distinguished as a land of diverse cultures, communities, colors, and variety. Through my experiences, I have learned that communities learn from each other, creating bridges and unions between cultures. Ignoring any single community impacts the entire cultural fabric of a place. Minorities have always contributed significantly to the nation, finding their homes here just as everyone else does. Furthermore, regional integration by drawing the commonalities and pooling regional resources can maximize benefits for everyone, including minorities in Jammu and Kashmir and nationwide. Over the past decade, Jammu and Kashmir has experienced growth in various sectors and development with increased connectivity through roads and railways. This has opened up opportunities for investments and tourism, including ecotourism and cultural tourism. The need of minority communities go beyond mere wants. They are legitimate and essential, particularly when considering the challenges they faced in daily lives. My meeting with different communities, which I just named, groups fostered open dialogues aimed at understanding their concerns and collaboratively developing solutions. A shared burden ceases to be a burden when we all come together to address it collectively. It is imperative that minorities in Jammu and Kashmir genuinely feel they are equal stakeholders in progress. This collective responsibility calls upon all of us gathered here today to forge a new pathway and innovative strategies to bring this noble aspiration to fruition. So the main thing that I have also seen during my meeting is that, and I have addressed and I have told everyone, is सबसे पहले हमें ये कहना है कि हम इंडियंस हैं। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि हम माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी हैं, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण्स हैं, अहमदियाज हैं, या जो भी आप कहें, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं। हमें ये नहीं देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं। और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी हमारे देश से होती है। कुछ हफ्ते पहले मैं अमेरिका में थी, मैं लंदन में थी, यूके में थी। आई वाज स्पीकिंग एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वहां पे जब उन्होंने मुझे देखा, साड़ी पहनी थी, सलवार कमीज पहना था, तो उनका पहला क्वेश्चन था, आप इंडिया से हैं? वी लव इंडिया। सो आज कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हमें एज एन इंडियन वो पहचान मिली है, एज एन इंडियन वो रिस्पेक्ट मिली है, तो हमें पहले उस पर गर्व फील करना चाहिए। सो आई थिंक वी ऑल शुड कम टुगेदर
एंड मैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मिली उनके कंसर्न्स थे और बहुत जेन्युइन कंसर्न्स थे। और मैंने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो 15 पॉइंट प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी तक उनका फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो ये जो गैप बीच में टूट गया है, मैं एज अ मेंबर विल ट्राई टू ब्रिज दैट गैप एंड ब्रिंग फॉरवर्ड आवर अटमोस्ट ऑनेस्ट कोशिश, जो हम कहते हैं ना कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम ब्रिज कर पाए। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन आज इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही है। मेरे साथ निगत बैठी है जो हमारे सेंटर्स को हेड करती है, मेरे साथ अमन जी बैठे हैं जो माइनॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं और केवल सिख माइनॉरिटीज के साथ नहीं, उनके साथ पूरा जम्मू एंड कश्मीर जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है, जब ये आगे आके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसे कदम उठाता है कि हमें अपना घर चलाने के साथ साथ अपनी जॉब्स और जो हम काम कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी अपनी कम्युनिटी के अपने एरियाज के, बारामूला हो, सोपोर हो, हंडवारा हो, कुपवाड़ा हो, गुरेज हो, श्रीनगर हो, जम्मू के अलग एरियाज हो, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जो भी एरियाज है हमारी स्टेट के, हम अगर ये देखें कि किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है, किसी को हमारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कल जब हम एक ग्रुप को मिले, उन्होंने कहा मैम ये जो 2-3 चीजें अभी आपने बताई इनके बारे में हमें पता ही नहीं था। सो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है और स्कीम्स दे नहीं रही है, काफी लोगों तक वो पहुंची नहीं है क्योंकि उनके बारे में उनको पता नहीं है। तो अब हमारी जो टीम है जो जम्मू एंड कश्मीर की, आज मैं जम्मू कश्मीर में हूं तो मैं और पार्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में नहीं करूंगी, आई विल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली। तो हमने एक टीम बनाई है, वो फोकस करेगी कि ये जो स्कीम्स हैं ये लोगों तक पहुंचे। वी विल ऑल्सो रन कैंपेन्स जो डोर टू डोर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के घरों तक जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो दुखी हैं कि उनको नहीं मिली और क्या ऐसी स्कीम्स हैं जो उनको मिल सकती हैं। सो नॉलेज एंड स्प्रेडिंग द राइट मैसेज, स्प्रेडिंग द राइट वर्ड इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमारी टीम का ये काम रहेगा कि वो सब तक पहुंचे और जो फैसिलिटीज माइनॉरिटीज को मिल रही हैं वो मिलें, और जिन तक नहीं पहुंची हैं, जहां तक नहीं उनको ये फैसिलिटीज मिल पाई हैं, तो टीम वो दिल्ली से और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से मिलके उसको ब्रिज करने की कोशिश करेगी। थैंक यू। I have a question. As far as the US reports are concerned, you said that you have already got so many places and you have searched so many things. Which report is concerned? Department 2023 reports religious freedom highlights incidents and violence including killings, assaults and vandalism targeting minority groups such as Muslims and Christians. So what steps in this specially commission, minority commission is taking to address concerns and ensure the safety right for the minority? देखिए, अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें या हम किलिंग्स की बात करें, तो पहले तो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन टू किल समबडी इज नॉट एक्सेप्टेबल. To kill anyone for any reason is not acceptable, because violence, killing is not something that can be forgiven or should be forgiven. Whereas security is needed to either minority community or the community. ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जो मुस्लिम रहते हैं उनके साथ कभी ऊंच नीच नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियंस के ऊपर ही ऐसा कुछ हुआ है या सिख्स के ऊपर ही हुआ है या हिंदू पंडित्स के ऊपर ही हुआ है. आई थिंक द सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री इज इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर in future already lots of huge steps have been taken to address this issue, and in future also we will put down basic with point to point addressing the right concern. वो बोलते हैं ना, not on a vast canvas but on a particular topic and particular point that this needs to be addressed. And I'm sure आपने देखा है पिछले कितने सालों में बहुत अच्छा काम जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है. हम अगर किलिंग की बात करें तो number has literally fallen on the floor, and as I say, we all have to work towards it. अगर हम अपने देश से कुछ चाहते हैं, अगर हम सरकार से कुछ चाहते हैं, तो हमें भी अपना वो कदम आगे उठाना है, उनको वो कंफर्ट देने के लिए कि आप जो हमारे लिए करना चाहते हैं हम उसमें आपके साथ जुड़े हैं.
हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज हमें सेफ्टी दीजिए, हम भी उसमें आगे आके हिस्सा लेंगे और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे. सो इट इज ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट. इट कैन नेवर हैपन ओवर वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक ऑल ऑफ अस need to be responsible, and I'm sure major measure in future will also be taken as they're already being taken. रिसेंटली कश्मीर के उसमें बाहर जाने का उसको बहुत हरासमेंट किया जाता है. क्या आपकी कमीशन ने कोई बात की आपने उसके लिए आप कोई एक्शन ले रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स कश्मीर के जो बाहर जाते हैं उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपने लेटेस्ट न्यूज इंटरनेशनल भी देखी होंगी. कुछ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं who have faced major issues in countries abroad when they've gone to study. तो हम अगर एक कश्मीर का है या पंजाब का है या महाराष्ट्र का है या यूपी का है, हम इसमें अपने कम्युनिटी को डिवाइड ना करें. हम ये कहें कि मैम, जब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या वो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उसके लिए क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी. एंड आई थिंक some issues, some incidents that we've seen in past couple of months, government of India has taken huge steps. जब यूक्रेन एंड रशिया के वॉर में कुछ इंडियंस एंड स्टूडेंट्स स्पेशली जो वहां फंसे थे, उनके लिए स्पेशल एयरलाइंस उड़ी थी उनको वहां से लाने के लिए. तो आई थिंक हमारी जो सरकार है वो हमारे देशवासियों से बहुत प्यार करती है. And this is not something we need to worry about, and we have to take collective measures for this. देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो हुआ उसको भूल जाए. अभी आगे क्या होगा उसके ऊपर ध्यान दें. आज हम एक फैनेटिक कंट्री नहीं है, इसीलिए कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सब मिलकर रहते हैं. आज इंडिया इतना फ्लरिशिंग है, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, हमारी रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं. आप महाराष्ट्र, मुंबई में आके देखिए, सी के ऊपर बड़े बड़े ब्रिजेस और अंडरपासेस बन रहे हैं. तो आज हमें ये देखना है कि हम कलेक्टिवली अपने देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं. जहां तक कश्मीरी पंडित्स की बात है, मैं एक ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स को भी मिली हूँ. वो यहाँ से 96 से यहाँ रह रहे हैं. बहुत सारे कश्मीरी पंडित ग्रुप्स को मैं जम्मू में भी मिली हूँ. उनका है कि मैम, हम यहाँ भी रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं. मुझे नहीं लगता आज कश्मीर के अवाम में ऐसा कोई नेगेटिव एटीट्यूड है कि वो कश्मीरी पंडितों को वेलकम नहीं करेंगे. आप सब मीडिया के जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आप खुद कश्मीरी हैं, आप इनकी बात का जवाब दीजिए कि आप नहीं चाहेंगे कि और देशों से और स्टेट से आपके कश्मीरी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जिस भी रिलीजन के हो, वो लोग वापस नहीं आएंगे क्या? तो आई थिंक देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच हैव बीन आल्सो ऑलरेडी बीन गिवन टू कश्मीरी पंडित्स फॉर कमिंग बैक हियर, एंड नाउ चॉइस इज देयर. दे हैव टू मेक अ चॉइस whether they want to come here or not. And I think जहां तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल, एवरीथिंग इज वेरी गुड नाउ इन वैली. सो हमें पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू.